students? How are my smart learners? I hope you all are well, fit and fine. Students, I just welcome you in the science class, and in our last lecture of lesson 8, student, that is body movements, we discussed about the various types of joints like ball and socket joint, which allows movement in all the directions, like the joint between our shoulder and our arm. Okay, then pivotal joint, the joint between head and the neck. Okay, and hind joint present in our elbow and in the knees. Okay, so they allow movement. Hind joint allows movement only in one direction. Then fixed joint. Fixed joints, they do not allow any movement, students. Like our upper jaw is connected with the skull bone with the help of fixed joint. Okay, like the bones in our head, they are also connected. They are also joined with the help of fixed joint. Then students, we discussed about skeleton, the framework that gives shape to our body. अगर हमारी बॉडी की एक फिक्स शेप है तो वो किसकी वजह से है? स्केलेटन, जिसमें हमारे जो बोन्स होते हैं वो एक हार्ड फ्रेमवर्क का काम करते हैं. Then students, we discussed about the bones present in our arms, that is humerus, radius and ulna. Then we have carpals, atlas, then metacarpals in our palm and phalanges in our fingers. Okay, so today we will discuss activity 4. What you have to do? Take a deep breath. एक गहरी सांस लीजिए. आप ऐसे लेंगे तो you can feel the hard structures. ऐसे आपको curved structures feel होंगे students. और अगर आप देखेंगे, these curved structures are called our ribs. क्या बोलते हैं हम उन्हें? Ribs बोलते हैं students. And ribs, students, they are connected with the backbone at the back. पीछे से वो backbone से connected है. And front में students वो हमारे breast bone या फिर जैसे हम sternum बोलते हैं वो उससे connected है. तो एक वो cage type structure बना लेते हैं students. And the structure is also given in your book on page number 71, figure number 8.10. So you can easily see the structure. And आपको ऐसा लगता है जैसे birds का cage होता है ना, इसी तरह से आपको cage like structures नजर आएंगे. And that is called a rib cage. क्या बोलते हैं इसको? Rib cage. Rib cage में students, it has 12 pairs of ribs. Okay, out of 12, 10 they are connected. Means कि वो आपका rib type structure बनाएंगे, like cage type structure from backbone to front bone, breast bones. Okay, but two pairs जो हैं ribs के, they are called floating ribs. अगर आप लास्ट में रखेंगे, आपको ending में ऐसे आपको straight नजर आ रहे हैं वो फिगर में, they are called floating ribs. So total how many pairs of ribs we have? 12 pairs. And friends, what is the function of this rib cage? Rib cage protects the internal delicate organs. Like अगर आप देखेंगे head में skull, तो skull क्या protect करता है? हमारे brain को protect करके रखता है. Similarly, rib cage protects the delicate internal organs like heart, like lungs. Okay, so these organs are protected by a hard structure that is called rib cage. Students, rib cage के बाद हमारे आते हैं बैकबोन. अब हमें कैसे पता चलेगा बैकबोन का? आप अपने किसी भी फ्रेंड को आस्क सम फ्रेंड्स, कोई भी आपका फ्रेंड है या ब्रदर सिस्टर है, जो भी घर में है, स्टूडेंट्स रहते हैं आपके साथ, उनको कहिए कि अपने टोज को, पंजों को वो टच करेंगे, बट अपने नीज को बेंड नहीं करना है. ओके, स्ट्रेट होने चाहिए लेग्स बिल्कुल. देन स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, आप ऐसे नेक से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सम हार्ड स्ट्रक्चर्स एट द बैक. ये क्या है स्टूडेंट्स? दे आर द बोन्स, स्मॉल ऐसे छोटी छोटी बोन्स मिलेंगी आपको. एंड इट इज बैकबोन. क्या बोलते हैं हम इसको? बैकबोन. ऑल्सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. इसको हम और भी क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम. ओके, सो स्टूडेंट्स, this vertebral column or backbone consists of 33 vertebrae. ये जो छोटी छोटी बोन्स है इनको हम बोलते हैं vertebrae. एंड कितनी होती है ये टोटल नंबर में? 33. सी, the
it is made up of many small bones called vertebrae. The backbone consists of 33 vertebrae. The rib cage is joined to these bones. जो हमारे रिब केज के रिब्स थे स्टूडेंट्स, वो बैक साइड में इस बैकबोन से कनेक्टेड रहते हैं. फ्रंट साइड में वो चेस्ट बोन या फिर हम जिनको ब्रेस्ट बोन्स कहते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं, एंड बैक साइड में वो इस बैकबोन से कनेक्टेड रहते हैं. ओके, इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड? स्टूडेंट, अगर आपकी जो हमारी जो बैकबोन है एक सिंगल बोन से बनी हुई होती तो क्या हम बेंड हो सकते थे? लाइक दिस पेन स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंगल है, क्या हम इस पेन को कहीं से भी बेंड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. तो दैट इज वाई आवर मूवमेंट इज पॉसिबल. वी कैन बेंड, वी कैन लाइक दिस, हम इस तरह से मूव कर सकते हैं. तो दैट इज ओनली ड्यू टू दीज जॉइंट्स बिटवीन दीज 33 vertebrae. The movement is possible, bending, rotation, that is possible. Okay. After rib cage and backbone, students, हम कुछ और bones के बारे में पढ़ेंगे. Like, come to page 71, the last paragraph, left hand side. Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her or him to push the wall. स्टूडेंट, घर में आपकी जो भी ब्रदर सिस्टर हैं, आप उनको कहिए कि वो अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट करके दोनों हैंड्स को ऐसे दीवार की तरफ, दीवार को पुश करेंगे कि पीछे की साइड में वो कर सकते हैं. कर तो नहीं सकते पुश, पर दे ट्राई टू पुश द वॉल. ओके, तो आप जब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, बैक पे आपको दो बोन्स जो हैं बड़ी प्रोमिनेंट नजर आएंगे. डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट? प्रोमिनेंट मतलब अलग से दिखने वाली चीज. ओके, सो जहां पर हमारे शोल्डर्स है वहां पर आपको दो बोन्स बड़ी प्रोमिनेंट नजर आएगी, एंड दीज आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स. हाउ मेनी बोन्स? 2 shoulder bones on each side, one on each side, one here and one here. Okay, then also friends, see 8.13 figure, carefully observe it. This structure is called pelvic bone. इस structure को हम क्या बोलते हैं friends? Pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. जो हमारे stomach से नीचे का portion है वो इसको enclose करके रखते हैं. जनरल स्टूडेंट, जो pelvic bones है हमारे ह्यूमन बॉडी में, इसमें हमारे 3 bones होती हैं. It is made up of 3 bones. Okay, and this is the part on which you sit on. और ये बॉडी का वो पार्ट है जब हम बैठते हैं स्टूडेंट, so we sit on the pelvic due to this pelvic. Now we will talk about skull. हमने पहले भी बात की है skull में, जो skull में हमारे bones हैं, they are connected with the help of fixed joints. Okay, student, and the skull, it protects the very delicate organ which is called brain. अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है स्कल में हमारे कितने बोन्स होते हैं? There are 8 bones. देखिए, it is not given in the book, तो please note it down कि how many bones are there in our skull? 8. और 14 are facial bones. जो हमारा फेस एरिया है उसमें टोटल हमारे कितने बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स? 14. तो टोटल हमारे पास कितनी बोन्स हो गई? 22 बोन्स हो गई स्टूडेंट्स, स्कल प्लस फेशियल बोन्स. ओके, ये दोनों मिलाकर हमारे 22 बोन्स होते हैं. एंड जिसमें हमारे जैसे फेशियल बोन्स में हमारे आई सॉकेट्स हैं, हमारे आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ऐसे ही सिमिलरली स्टूडेंट, जो इतना भी हमारा ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है स्केलेटन, इट प्रोटेक्ट्स आवर इनर डेलिकेट ऑर्गन्स. ये हमारे बड़े सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ओके, हाँ जी. इन एक्टिविटी 4 स्टूडेंट्स, we discuss about rib cage, backbone, shoulder bones, pelvic bones. Okay, तो अभी तक हमने bones के बारे में डिस्कस किया है. Now we will discuss about the other things present in our skeleton system. Okay, there are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones. जो bones की तरह hard तो नहीं है स्टूडेंट्स, and which can be bent, जिन्हें पर बेंच किया जा सकता है, and these are called cartilage. क्या होते हैं उसको? These are called cartilage. Feel your ear. ये जो ear lobe है आपका स्टूडेंट, इसको फील करेंगे आप. See, टच करिए इसको. Do you find any hard bony part? क्या आपको इसमें कोई hard bony part दिखता है that can be bent? There do not seem to be any bones here, isn't it? Yes.
यहाँ पर हमें कोई भी बोन नजर नहीं आएगी। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन ईयर लोब, ये जो लोब है, ईयर लोब छोटा सा आपका जो ये पोर्शन है आपका, ओके, एंड द पोर्शंस अबव इट एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स। फ्रेंड आप इसको ऐसे प्रेस करते चले जाइए। कैन यू फील समथिंग डिफरेंट? You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft. So ये जो हमारा पार्ट है ये इतना सॉफ्ट नहीं है जितना हमारा ये नीचे से ईयर लोब वाला पार्ट सॉफ्ट है, बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन, लेकिन एक बोन की तरह बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। दिस इज कार्टिलेज। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज हमें और भी कहा लगता है फ्रेंड, जॉइंट्स के बीच में भी प्रेजेंट रहता है हमारा कार्टिलेज। सॉफ्ट मटेरियल है, कुशनिंग मटेरियल है स्टूडेंट, वो सपोर्ट करता है मूवमेंट को। ओके, सो कार्टिलेज क्या है? द सॉफ्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द एट द एंड्स ऑफ द बोन्स ऑल्सो लाइक दिस ईयर। और अगर आप नोज की टिप देखेंगे स्टूडेंट, इट इज कार्टिलेज। ये क्या है हमारा? कार्टिलेज। Till now we discussed that our skeletal system is made up of bones, joints and cartilage. Friends, जो हमारे bones हैं, they have joints जिन places से वो move करते हैं, and cartilage, the soft material जो हमें मूवमेंट में सपोर्ट करता है क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्टिलेज जो है फ्रेंड्स हमें एकदम से बॉडी में झटका नहीं लगने देता, हमारे मूवमेंट्स को स्मूथ बना देता है। ओके, देन फ्रेंड्स we have also learned that bones in our body and the joints they help to move. अगर आप देखेंगे कि ये जो joints हैं, bones बिल्कुल straight होती तो movement possible नहीं था। Due to these joints, movement is possible. Now students, we will discuss कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन bones को इन movement में help करती है। But before that, हम उससे पहले क्या करेंगे? एक activity करेंगे। Okay? आपने क्या करना है? Make a fist with one hand. आप अपनी एक मुट्ठी बनाइए, ठीक है, एंड देन यू जस्ट बेंड योर आर्म एट द एल्बो। आपने अब क्या करना है? अपने कोहनी से ऐसे मोड़ लेना है एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। ये जो हमारा थंब है इससे आपको शोल्डर को टच करना है। अब आप क्या करिए? डू यू सी चेंज इन द अपर आर्म? आपको ये अपर आर्म में आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं थोड़ा थिक हो गई है ना, स्वॉलन पोर्शन नजर आता है आपको, थोड़ा सा थिक पोर्शन नजर आएगा स्टूडेंट्स। सो ये क्या है? दिस इज अ मसल। क्या है ये? हमारे मसल्स हैं। द मसल्स बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब चीज स्मॉल हो जाती है साइज में, तो जैसे हमने इसको ऐसे किया स्टूडेंट, तो ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, जब हम उसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके जाते हैं, मतलब हम बेंडिंग नहीं करते, सिंपल अपने आर्म को ओपन कर लेते हैं, आप देखिए दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मसल्स हैं स्टूडेंट्स वो अपने ओरिजिनल साइज में आ गए, जिनको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? रिलैक्सेशन। तो आपने देखा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। ओके, इज इट still contracted? You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. जब हम स्टूडेंट भागते हैं या चलते हैं, ऐसे ही हमारी मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और रिलैक्स करती रहती हैं। When contracted, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, the muscles become shorter, छोटी हो जाती है, stiffer, थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, एंड थिक हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, एंड बोन को पुल करती है, बोन को वो खींचती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल जो है स्टूडेंट्स वो मूवमेंट करने के लिए पेयर्स में काम करती है। पेयर में मीन्स टू मसल्स आर देयर इन वन पेयर। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जब हम अपने एल्बो को ऐसे बेंड करते हैं तो ये जो मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बोन को अपनी तरफ पुल करती है, एंड द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। जो यहाँ पर जो दूसरे मसल्स हैं, जो हमारे ये वाले मसल्स हैं, आप ये देखेंगे ये रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, ये जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, बट ये वाली जो मसल्स हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये मसल्स हमारे क्या कर रही हैं? ये रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, एंड टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन,
अब वापस अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है फ्रेंड, तो ये वाली जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारी, और ये वाले मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये बोन्स को फिर अपने तरफ पुल करेंगी, मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन पर ला देंगी। ओके, सो यू सी स्टूडेंट्स, to move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position, while the first relaxes. अब जो फर्स्ट वन थी, जो ऊपर वाले आपके मसल्स थे, वो रिलैक्स करने लग जाते हैं। अब मसल कैन ओनली पुल, जो मसल है स्टूडेंट, इट कैन ओनली पुल, ये पुश नहीं कर सकती है, इट कैन नॉट पुश। इसीलिए दो मसल्स काम करती हैं स्टूडेंट्स, एक बोन को मूव करने के लिए। ओके, one contracts, other relaxes, then the other contracts and the first one relaxes. A muscle only pulls, it never pushes, and thus muscles work in pair. That is how they help in the movement of the bones. Now friends, question arises, if every time muscles and bones in every animal, muscles and bones are required for the movement, and what about the animals which do not have bones? कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे ना जिनमें बोन्स नहीं होती, बता सकते हैं, सोच सकते हैं, लाइक अर्थवर्म, स्नेल, जेलीफिश, स्पाइडर्स। ओके स्टूडेंट, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। जिन एनिमल्स में बोन्स नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, एंड जिनमें होती हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जैसे हम वी आर वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, वर्टिब्रेट्स है, और अर्थवर्म, स्नेल, स्पाइडर, जेलीफिश एक्सेट्रा, all these are the examples of invertebrate animals. Okay, so friends, we will now just study the movement of animals. ये means movement, the movement of different animals. अगर आप देखेंगे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड्स, फिश, स्नेक, इन सबके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से कुछ वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ एनिमल्स में बोन्स होते हैं और कुछ एनिमल्स में नहीं होते हैं। ओके, सो वी स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। Yes students, we start from the movement of earthworm. Students, अगर आप गार्डन में अर्थवर्म के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि हम अर्थवर्म को एक फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर, बेसिकली जो रफ सरफेस है उसके ऊपर रखकर देखें, एंड देन वी ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। देन ऑल्सो हम एक स्मूथ ग्लास प्लेट लें या फिर जिसका सरफेस स्मूथ है, स्लिपरी है, हम उस पर उसको रखें, एंड देन हम अगेन उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। तो अब आपको क्या बता सकते हैं कि इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, और कौन से सरफेसेस पर अर्थवर्म जो है वो जल्दी मूव कर सकता है। उससे पहले हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखें स्टूडेंट्स, इससे पहले हम उसके मूवमेंट को देखते हैं कि कैसे अर्थवर्म मूव करता है। ओके, सी द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स। जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी में बहुत सारे रिंग्स जो हैं वो जॉइंट हैं। ये बहुत सारे रिंग्स जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं और उससे उसकी बॉडी बनी हुई होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि an earthworm does not have bones. Okay, so ये क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें जो मसल्स हैं वो उनको एक्सटेंड और अपनी बॉडी को शॉर्टन करने में हेल्प करती है। मतलब कि एक्सटेंड मतलब टू इंक्रीज इन साइज, शॉर्टन मतलब टू डिक्रीज इन साइज। अब मूवमेंट के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्चुअली हम डायग्राम से समझेंगे। जो ये इनका देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक एंड है, रियर पार्ट है, ठीक है। सो जब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म, तो वो क्या करते हैं, इट पुल्स इट्स फ्रंट पार्ट। ये अपने फ्रंट पार्ट को जो है वो एक्सटेंड करते हैं, इंक्रीज करते हैं साइज में, लेकिन जो बैक पार्ट है उसको यहां पर ही वो फिक्स करके रखते हैं। ओके, देन जो इनका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि अब ये क्या करते हैं, अपने फ्रंट पार्ट को फिक्स कर लेते हैं उसके बाद, और जो बैक पार्ट है उसको रिलीज कर लेते हैं। ये सेकेंड स्टेप है इनके मूवमेंट का। इससे क्या, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फिर शॉर्टन करते हैं। ओके, शॉर्ट करते हैं, एंड देन वो अपने जो बैक पार्ट है उसको वो पुल कर लेते हैं। तो ये देखिए, इन 3 स्टेप्स में अर्थवर्म का मूवमेंट जो है वो एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन मसल्स के करने से उनको मूव कर पाते हैं। इसकी वजह से वो छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, जब अर्थवर्म मूव करता है तो उसकी बॉडी जो है वो इकट्ठी होती रहती है और एक्सपैंड करती रहती है।
ओके सो और इन्हीं रिपीटिंग जो ये इनके मसल्स का एक्सपेंशन है और जो कॉन्ट्रैक्शन है, इन्हीं रेपिटेटिव मोशंस के कारण, इन रेपिटेटिव मूवमेंट के कारण ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस को कवर करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट अर्थवॉर्म्स जो है दे ऑल्सो, उसकी जो बॉडी है वो एक स्लिमी सब्सटेंस, आप देख सकते हैं इट इज गिवन है दैट स्लिमी सब्सटेंस मीन्स कि एक चिपचिपा सा सब्सटेंस को वो रिलीज करते हैं जो उनको मूवमेंट में हेल्प करती है। नाउ हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स टू इट बॉडी टू द ग्राउंड, अभी हमने पढ़ा था कि अपने रियर को या फ्रंट पार्ट को फिक्स कर लेते हैं, तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, जैसे हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ऐसे इनके पास भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बाहर की तरफ निकले हुए। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल, और जो ये ब्रिसल्स हैं ये किस चीज से कनेक्टेड है? मसल से कनेक्टेड है। एंड द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जैसे हम कोई भी हमारे हाइंजेस होते हैं या कोई भी हमारी वॉल को अगर हम पकड़ने के लिए एक अच्छी ग्रिप बनाने की जरूरत पड़ती है, तो वो जो है इन केस में इनके जो ब्रिसल्स हैं वो उनकी ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। देन द अर्थवॉर्म, अब एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे कि अब जो है आप देखें कि वो कौन से सरफेस पर, यहाँ हम आके आंसर कर सकते हैं कि कौन से सरफेस पर वो इजीली मूव करते हैं। तो अगर आप देखेंगे अर्थवॉर्म जो है थोड़ा सा रफ सरफेस पर इजीली मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनकी वहां पर ग्रिप अच्छी बन जाती है। स्लिपरी उसमें क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्लिमी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं तो ग्रिप थोड़ी मुश्किल बनती है, तो इट इज इजियर फॉर अर्थवॉर्म टू मूव ऑन अ रफ सरफेस। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। अब अर्थवॉर्म क्या करते हैं स्टूडेंट? वो जो खाते हैं वो सॉइल को खाते हैं, और इनकी जो बॉडी है, जो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको यूज करते हैं, और इनकी जो बॉडी है स्टूडेंट, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है मटेरियल का, वो इसको थ्रो आउट कर देते हैं। ओके, दिस एक्टिविटी ऑफ द अर्थवॉर्म, अगर आपको ध्यान होगा तो अर्थवॉर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो सॉइल को ज्यादा यूजफुल बना देते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये हमारा जो है दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। ओके, नेक्स्ट वी ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ स्नेल। बहुत स्लोली मूव करते हैं स्टूडेंट स्नेल जो है। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन, जनरली स्टूडेंट्स ये आपको गार्डन में मिलेंगे स्नेल्स जो है। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, ये स्टूडेंट जो आप राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके बैक पे होता है, और ज्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी बॉडी को ना प्रोटेक्शन करने के लिए, जो शेल है इनकी बॉडी को, बॉडी सॉफ्ट बॉडी होती है, प्रोटेक्ट करता है, तो ये अपनी सारी बॉडी को इस शेल में कलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये जो इनका ये है शेल है दैट इज कॉल्ड द आउटर स्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में इनर स्केलेटन सिस्टम है, हमारे अंदर है, इनका आउटर स्केलेटन सिस्टम होता है, बट इज नॉट मेड ऑफ बोन, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना हुआ है स्टूडेंट। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये शेल स्टफ स्टूडेंट इनकी बॉडी को मोस्टली प्रोटेक्ट करने के लिए, मूवमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग, ये तो इसको अपने साथ साथ बॉडी के लेके चलते हैं। देन स्टूडेंट आप और एक और काम कर सकते हैं, आप इस स्नेल को एक ग्लास प्लेट में रखें और फिर देखें, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। हम अपनी थोड़ा सा हेड की ऊंचाई और ऊपर लेकर जाएं हेड के लेवल से, और फिर हम इसके मूवमेंट्स को नीचे की तरफ से देख सकते हैं। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। अभी इस शेल में से स्टूडेंट एक थिक स्ट्रक्चर, जैसे ये जो इनकी बॉडी का नजर आ रहा है आपको, ये बाहर आता है। ओके, एंड देन आप उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें। जो ये थिक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली वो जो थिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, इज इट्स फुट एंड इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। ये मस्कुलर फुट होता है इनका। एंड नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। जो वेवी मोशन है वो बड़े आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्लिमी सा सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पर भी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, इसी तरह से ये इनको हेल्प करती है। एंड इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट? स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे स्नेल का मूवमेंट जो है वो अर्थवॉर्म के मूवमेंट से बहुत स्लो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉकरोच। इफ यू सी एक्टिविटी 7, कॉकरोचेस स्टूडेंट दे वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। आपने देखो हमने जब मूवमेंट्स के टाइम पर पढ़ा था कि कॉकरोचेस क्योंकि उनके पास लेग्स हैं तो दे कैन इजीली वॉक एंड क्लाइंब। अब क्योंकि उनके पास विंग्स भी हैं तो दे फ्लाई इन द एयर। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। कितने पेयर्स हैं उनके पास लेग्स के? 3 पेयर्स, एंड दे हेल्प इन वॉकिंग।
एंड जो बॉडी है स्टूडेंट अगेन इट इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। अगर आप देखेंगे जो इनकी बॉडी है वो फिर एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड है। आउटर स्केलेटन जो इनका बना हुआ है स्टूडेंट इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर। इनकी बॉडी में आप इस तरह की छोटी छोटी सी आप लाइंस देखेंगे अगर आप कभी कॉकरोच को देखें, जिससे ये क्या करते हैं जो इनको मूवमेंट को अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर इनके विंग्स के बारे में देखेंगे स्टूडेंट दे हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स जो इनकी बॉडी से अटैच्ड रहते हैं हेड से पीछे की साइड से। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। इनके जो मसल्स होते हैं स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं एंड दोज नियर द लेग जो लेग्स के पास होते हैं स्टूडेंट दे मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। और जो बॉडी मसल्स मूव द विंग्स वो वही बॉडी मसल्स स्टूडेंट जो जिनसे इनके विंग्स कनेक्टेड हैं वो वाले मसल्स इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से कॉकरोचेस जो हैं दे कैन शो मूवमेंट इन बोथ द वेज, दे वॉक एंड क्लाइंब as well as they fly in the air. Okay. Next we have movement of birds. Friends, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है that birds fly in the air and walk on the ground. और कुछ birds जो हैं like ducks, swans, they also swim in water. These are the different types of movement of birds. Birds can fly. क्यों fly कर सकते हैं? Because उनकी जो bodies हैं student, they are very well suited for flying. उनके जो bones हैं they are hollow and light. और जो बोन्स है उनके हाइंड लिम्स जो उनके बैक वाले लिम्स होते हैं मींस उनके जो लेग्स होते हैं दे आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। वॉकिंग मींस टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड पर्चिंग मींस जैसे कि वो ब्रांचेस पर बैठ पाती हैं अपने या उन पर चल पाती हैं थोड़ा थोड़ा विद द हेल्प ऑफ देयर हाइंड लिम्स। ओके, द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स स्टूडेंट जो उनके बोनी पार्ट्स हैं फोर लिम्स के दे आर मॉडिफाइड एज विंग्स। बोनी पार्ट्स फोर लिम्स मींस जो उनके आगे वाले लिम्स होते हैं जो आगे वाले 2 पैर हैं स्टूडेंट एक्चुअली वो मॉडिफाइड है चेंज्ड है इनटू विंग्स। द शोल्डर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि उनकी जो विंग्स हैं वो उनके शोल्डर बोन से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। अब स्टूडेंट जो उनकी ब्रेस्ट बोन होती है जैसे हमारे यहाँ हमारी फ्रंट बोन होती है ह्यूमन बींग्स में जहां हमारे रिब्स जो है कनेक्टेड रहते हैं इनकी बहुत अच्छी तरह से मॉडिफाइड होती हैं ताकि वो उनके जो मसल्स हैं उनको होल्ड कर सके क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। इसी वजह से बर्ड्स कैन फ्लाई एंड विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो विंग्स को जब वो बर्ड्स अप एंड डाउन करते हैं स्टूडेंट इसी वजह से स्टूडेंट क्योंकि उनके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इस वजह से उनका मूवमेंट जो है उनका जो फ्लाइंग मूवमेंट है दैट इज पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, now we see activity 8 for the movement of fish. Okay students, see make a paper boat. आप एक पेपर बोट बनाएं, put it in water and push it with one narrow and pointing forward it. आप देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है बोट है। आप बोट को 2 डायरेक्शंस में प्लेस कर सकते हैं। नंबर 1 लाइक दिस। अभी आपको यहाँ पर भी पोजीशन सेम नजर आएगी लेकिन आप देखिए इसको हम मूवमेंट में कैसे करते हैं। आप देखिए कि ये जो बोट की शेप है वो इस अकॉर्डिंगली होती है। फर्स्ट टाइम में आप क्या कीजिए इसको पीछे यहाँ से इसको पुश कीजिए आगे की तरफ, आप तब उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। देन अब आप उसको यहाँ से जो इसका ब्रॉड पार्ट है ये इसका पॉइंटेड पार्ट था जहां हमने पहले पुश किया था, नाउ अब इसके ब्रॉड पार्ट से हम इसको पुश करेंगे और फिर आप उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए, देखिएगा क्या डिफरेंसेस हैं दोनों तरफ के मूवमेंट्स में। Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? अगर आप देखेंगे स्टूडेंट फिश की जो शेप है वो भी कुछ कुछ बोट की तरह है। See, okay? The head and the tail of the fish are smaller. ये जो बीच में मिडल पोर्शन है स्टूडेंट ये थोड़ा ब्रॉड होता है और जो माउथ का पोर्शन है और जो टेल का पोर्शन है वो टेपरिंग हो जाता है। टेपरिंग मतलब एंड्स पे जाके बिल्कुल पॉइंटेड हो जाते हैं और साइज में कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। Then the middle portion of the body tapers at both ends and this body shape is called streamlined. अगर आप birds में भी देखेंगे उनकी भी body streamlined होती है, बीच में से थोड़ी broad होती है और आगे माउथ वाले जो उनका beak portion है और जो उनका पीछे tail portion है वहां से वो थोड़ी tapering होते हैं similar to fish. अब फ्रेंड इस शेप की इंपॉर्टेंस क्या है? इस शेप की इंपॉर्टेंस ये है कि ये इस शेप के होने के कारण जो फिश का मूवमेंट है वो इजियर होता है। अभी आपने जो बोट वाली एक्टिविटी की है आप जब उसको टेपरिंग एंड से पीछे से मूव करते हैं
तो जो यहाँ पर वाटर का फ्रिक्शन इनको फेस करना पड़ता है, जो वाटर करंट्स का फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, इसकी वजह से ये फटाफट से आगे निकल जाते हैं। लेकिन जितना ज्यादा चौड़ा सरफेस होगा, अगर हम इसको इस तरफ से मूव करेंगे, जैसे हमने बोट को जो ब्रॉड सरफेस से मूव किया था, उनको वाटर करंट का उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से स्ट्रीमलाइन शेप जो है स्टूडेंट, वो इनको हेल्प करती है इस चीज में। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो इनके कर्व मूवमेंट्स हैं रिपीटेड होते रहते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं, एंड यही इनके जो जर्क्स होते हैं वो उनको बॉडी को आगे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। एंड सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, ये रिपीट होते रहते हैं ये जर्क्स, और जिसकी हेल्प से फिश जो है वो आगे की तरफ मूव करती रहती है। दिस इज ऑल्सो हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। जो हमारे इनके पास फिश के पास फिन्स होते हैं, उसमें वो भी इनको मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। मसल्स तो हैं ही, साथ में साथ इनके फिन्स भी हैं। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इनके जो फिन्स हैं, फिन्स ऑल्सो हैव फिशेस ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प। अब उनके जो है यहाँ पर भी इनके ये जो फिन्स प्रेजेंट है, टेल फिन तो इनको डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, बट जो इनके बॉडी में दूसरे फिन्स प्रेजेंट है, लाइक डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनकी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर वियर फिन लाइक फ्लिपर? आपने देखा होगा जो डाइवर्स जब पानी के अंदर जाते हैं, उनके पैरों में भी वो ऐसे फ्लिपर्स से पहनकर रखते हैं, जिनको फिन लाइक बनाते हैं वो, एंड ताकि वो बॉडी, उनकी बॉडी जो है वो वाटर में इजीली मूव कर सके। The shape is such that water can flow around it easily. So इसकी शेप जो है स्ट्रीमलाइन शेप, तो वाटर इसके आसपास से निकल जाता है और इनकी बॉडी को बहुत कम वाटर करंट्स का फ्रिक्शन को फेस करना पड़ता है। आपने देखा होगा शिप्स भी हमारे जो हैं, बोट्स भी हमारी जो हैं इसी शेप की होती हैं, और इसीलिए उनका मूवमेंट जो है वाटर में इजी रहता है। अब जो स्केलेटन है स्टूडेंट फिश का, दैट इज कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मसल। इनके जो मूवमेंट में इनका स्केलेटन सिस्टम है जो हेल्प करता है, और इनके जो मसल्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब स्विमिंग के टाइम में स्टूडेंट्स क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो फ्रंट पार्ट को, अब बॉडी को कर्व कर देते हैं वन साइड पर, एंड जो टेल पार्ट होता है, जो बैक पार्ट है, उसको वो उस साइड से अपोजिट साइड की तरफ स्विंग कर देते हैं। देन क्विकली फिश फॉर्म्स अ कर्व एंड क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड। अब जिस साइड पर उनका फ्रंट पार्ट था वो उससे अपोजिट साइड पे आ जाता है, और जिस साइड पे उनका टेल पार्ट था वो उससे अपोजिट साइड पे चले जाती है। मींस ये जो कर्व मूवमेंट्स हैं उनके, इस मूवमेंट की हेल्प से आप देख भी सकते हैं, इट इज ऑल्सो शोन इन द फिगर ऑल्सो। सी, जो टेल पार्ट है वो इधर की साइड है एंड जो फ्रंट पार्ट है वो राइट साइड है। अब धीरे धीरे ये क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट में आप देखेंगे टेल पार्ट को इन्होंने इधर के लेफ्ट साइड से निकाल के इन्होंने राइट साइड कर दिया है, और धीरे धीरे जो इनका फ्रंट पार्ट है वो इसको स्लोली, नॉट बहुत जल्दी नहीं, मतलब ये मूवमेंट्स होते बहुत जल्दी हैं स्टूडेंट, लेकिन हमें जो है वो इनके अकॉर्डिंगली थोड़ा धीरे धीरे नजर आएंगे। देन डाइवर्स दे वियर fin like flippers on their feet to help them move easily in water. Now our next movement is how do snakes move? Have you seen a snake slither? Students, वैसे बहुत जनरली हम कम ही देखते हैं, टीवी आप देख सकते हैं। Does it move straight? क्या वो सीधे सीधे मूव करता है? No. अगर आप देखेंगे जो वेवी मूवमेंट होता है स्नेक का, लूप्स बना बना कर चलते हैं। Snakes have long backbone. They have many thin muscles. स्नेक्स की जो बैकबोन होती है स्टूडेंट वो लॉन्ग होती है, एंड बहुत सारे थिन मसल्स उनके अंदर होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। स्टूडेंट, जो उनके मसल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपस में, जबकि दूर दूर होती हैं, स्टिल दे आर कनेक्टेड। एंड मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। जो उनके बैकबोन है और उनके रिब्स हैं और उनकी स्किन है, इन तीनों को वो कनेक्ट करके रखती हैं, जो इनके मसल्स होती है। थिन होती है बट स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। The snake's body curves into many loops. Students, अगर आप देखेंगे जो ये बॉडी इनका है, आप देखिए ये जो चीज है इसको हम लूप बोलते हैं। वो एक लूप बना के रखते हैं, यू शेप लूप्स में जो स्नेक्स हैं वो मूव करते हैं। Each loop of the snake gives a forward push by pressing against the ground. Because इनके legs तो होते नहीं है स्टूडेंट्स,
तो क्या करते हैं, जो हर लूप वो बनाते हैं, ईच लूप वो क्या करता है, एक पुश देता है उनकी बॉडी को, क्योंकि जो उनकी बैक बॉडी होती है वो उसको क्या करते रहते हैं, ग्राउंड के साथ प्रेस कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं एक तरह से। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, क्योंकि बॉडी बहुत लॉन्ग होती है स्नेक्स की और बहुत सारे लूप्स बनाते हैं, ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, तो सारे लूप्स मिलकर एक पुश करते हैं और जिसकी वजह से स्नेक्स की जो बॉडी है वो बहुत फास्टली जाती है। आप देखेंगे स्नेक का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लूप्स जो बनाते हैं इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं शो कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल। आपने देखा सुना इन सभी ऑर्गेनिजम्स में जिनमें बोन्स हैं उनमें बोन्स और मसल्स उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिनमें बोन्स नहीं है उनमें उनके मसल्स जो हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पहेली एंड बूझो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। अब स्टूडेंट उनके जो खजाना है, थैला है उनके बैग क्वेश्चन आंसर्स का, उसमें उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle, बहुत famous name है students philosopher का, in his book Gate of Animal asked himself these questions. Why do different animals have the body part that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? क्यों उनके बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं, कैसे वो बॉडी पार्ट्स उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स, जो डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट्स के लिए जो बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, एंड हाउ मेनी बॉडी पार्ट आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितने बॉडी पार्ट्स एनिमल्स यूज करते हैं। व्हाई 2 legs फॉर ह्यूमंस, क्वेश्चन था कि ह्यूमंस के पास 2 legs हैं और काउस के पास या बफेलोज के पास 4 हैं, एंड many animals seem to be having an even number of legs. Why is the bending of our legs different from that of our arms? हमारे legs की जो bending है वो हमारे तो why is bending of our legs different from that of our arms? क्यों हमारी जो legs की bending है वो हमारे arms की bending से different है। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे हमारे arms जो हैं वो forward direction में बेंड कर सकते हैं और जो हमारे लेग्स हैं आप देखिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम बेंड कर सकते हैं। सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम और पढ़ेंगे और हमें मालूम पड़ेगा कि क्यों हमारे मूवमेंट्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स में वो डिफरेंट हैं, क्यों उनके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट हैं। ओके।